Hi everyone, I welcome you to another episode of Scaling Vision podcast. Um, I'm so happy to host Dr. Sanjay Jain from Shanti Mohan Hospital. He has over 30 years he's been in the field for 30 years. He is the former president of many societies and the current president of AMS Academy of Medical Sciences. We're going to talk to him about his personal life, the starting of Shanti Mohan Hospital, the how his journey has been, his knowledge from critical care and diabetes management. He also has a Shanti Mohan Academy where he hones young doctors in their abilities. We're going to talk about the latest innovations in all these things and the future of medicine. I welcome you to the podcast, sir. Thank you. Let's start from the beginning, sir. Yeah. कि आप कहाँ से वाई मेडिकल फील्ड अब कहाँ से शुरू हुआ एंड देन स्टार्टिंग ऑफ शांति मोहन हॉस्पिटल सर. Yeah. Actually, I was born in Nagpur, but we were basically from Calcutta. So, born in Nagpur, then initial schooling up to third standard in Calcutta. But suddenly my father died, and my maternal uncle and my maternal grandfather, they brought me to Nagpur. We were two brothers and two sisters. Then after coming here, there was a difference in the West Bengal and the Maharashtra system of education. There, the December is the end of that particular year. So I passed out in December. I came here in January. So there was no school which is giving me admission, except there was one school near to my place. It was boys' home. So they says you admit into fourth standard, because the exam was in April. I got admitted in the fourth standard and I passed out in the April again. बराबर. So I reached the fifth standard. So it was a double promotion Right. like. So this is अभी एक साल मैं continue किया वहाँ पे. Then my grandfather thought कि you go to the better school. So I joined Bishop Cotton School. Right. There I was feeling, bit, sort of a complex there. All rich students used to come over there. And I was very, with meager resources. But then anyway, that time, other school were charging 6 rupees a month. This Bishop Cotton was charging 30 rupees a month. बाप रे. Fees, it's This is so much. school fees. क्या बात है. But then okay, it was I did whatever best I can do. And in 8th, they failed so many students. So in 9th, the classes become 1. So 9th and 10th, we had a co-education. Though school was having, but we were in B batch, there were no female students there. So then I passed out in 1978. Then I joined SFS College, Seminary Hills. But then I thought I should, at that time, the trend was either to become engineer or doctor. Right. I was weak in maths, so I thought of going towards, and I used to get full marks in the botany and उस समय शायद zoology. पीएमटी वगैरह था नहीं ना सर. PMT नहीं था. 12th के मार्क्स 12th के मार्क्स में था. तो वहाँ से मैं ये हुआ. You will not believe, first time I went to medical college with all the mark sheet there was nothing, like it will come on the online, mobile, nothing of that. तो मेरे को marks वहाँ मिल गया. But there was one incidence. There was one girl, Sadhna Himadi. She was with me in 9th and 10th BCS. What happened, something went wrong in the physics practical, SFS college. And lot of problem occurred. I thought, यार गया इस बार अपना हाथ से. 20 marks का रहता था practical. But she says, Sanjay, तू इधर आ, मैं तेरा कर दूंगी. क्या बात है. In fact, I told her also कि I am doctor because of you. क्या बात है. तो उस वक्त क्या 12th के मार्क्स पे थे. तो मैं इधर आया तो मैं, यू विल नॉट बिलीव, हम साइकिल से, मैं और मेरा एक दोस्त था सुनील, हम लोग पूछते मेडिकल कॉलेज गए कि भाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पे. तो वहाँ गए, दे हैव गिवन मी, दे सेज यू आर अंडर एज नाउ, क्योंकि वो हाँ डबल प्रमोशन हो गया था. तो अभी ये सिस्टम नहीं रहा. दे सेज वी विल गिव यू एडमिशन बट यू हैव टू जॉइन नेक्स्ट ईयर. तो 7 people वर अंडर एज इन आवर बैच. आई वाज रोल नंबर 7. तो ज्वाइन किया मैं वहाँ बोला आपको सर्टिफिकेट लेके आना. वी रैन ऑल द वे टू BCS
बट द हेडमास्टर वॉज वेरी कोऑपरेटिव, यार बोले तेरे को मिल गया। आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन द स्कूल, तो मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं था वहाँ, लेकिन वो बोला तेरे को मिल गया, तो आई फटाफट बना के दिया उसने। हेडमास्टर वॉज मिस्टर गाड़गे, तो मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। एक्चुअली 1 साल के लिए आई ज्वाइन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आई वॉज नॉट अवेयर, यू नो देयर वाज नोबडी टू गाइड कि यार मेडिकल कॉलेज ही ज्वाइन कर लेना था। बराबर। तो मैं इंस्टीट्यूट साइंस ज्वाइन किया। ऑफकोर्स आई डिडंट अटेंड टू मैनी, बट आई पास्ड आउट इन फेयरली विद गुड मार्क्स बिकॉज जूलॉजी वॉज देयर एंड ऑल। तो उसके बाद ये जर्नी चलती रही। इनफैक्ट आई वॉज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट आई वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो मैं बहुत पढ़ाई करके आई वांटेड टू बिकम ए गुड फिजिशियन राइट फ्रॉम द डे, यार फिजिशियन बनना है। आई वाज नो इंक्लिंग टुवर्ड्स सर्जिकल साइड। बराबर। तो इनफैक्ट आई वांटेड टू बिकम कार्डियोलॉजिस्ट, बट देन एनीवे थिंग्स वेर यू नो डिफरेंट एट टाइम्स। आई हैड टू रन द माय मदर एंड ऑल, ये सब तो रन माय फैमिली, माय मदर, सिस्टर्स एंड ऑल। तो इनिशियली काफ़ी ये किया, बट आई ऑलवेज रिग्रेट कि आई शुड हैव डन मच बेटर इवन इन फ्रॉम फ्रॉम द फर्स्ट MBBS, दो दे काउंट मी इन द गुड स्टूडेंट लिस्ट, बट आई नो कि आई कुड हैव डन मच बेटर। वहाँ से फिर IGMC, everybody was there. It was a very good atmosphere in the IGMC, though we were ranked badly by our immediate senior batch, but then it was all okay. पर उस समय हेल्दी रैगिंग हुआ करती थी। हेल्दी भी थी, थोड़ी ज़्यादा भी की। पर आई थिंक बीच में फिर वो अनहेल्दी वाला बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत ज़्यादा हो गया था फिर, तो वहाँ पे अच्छा ये हुआ। एंड देन ऑफ कोर्स we used to go on cycle and all. They were very difficult days. चलता था अच्छे से। एंड thereafter I passed out. Then I've decided to go for a medicine. I did 2 jobs there. That time the system was different. There was nothing like pre-medical or बराबर। PG. रजिस्ट्रार बराबर। तो मैंने एक जॉब मेडिसिन में किया, Ward 6. It was the heaviest duty. And I lost almost 10-12 kg of weight in 6 months. And I was, you know, पहले तो खाने को नहीं मिलता था और ऊपर से 24 hours work. तो वहीं पे चल रहा था. But it was a very great experience. It made me, you know, to work still for 20 hours at now also. उसके बाद मैं पीडियाट्रिक ज्वाइन किया. तो पीडियाट्रिक में भी it was heavy workload. यानी you can't imagine इतना वर्कलोड था वहाँ. तो उसके बाद वो ज्वाइन करना था मेरे को मेडिसिन. तो वो देशमुख मैडम थी, वो बोले नहीं, यू ज्वाइन पीडियाट्रिक्स. मैं बोला मैं यहाँ पे आई वॉज, यू नो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फेस द मदर. द चाइल्ड इज डाइंग एंड लॉट ऑफ नियोनेटल डेथ्स दैट टाइम. तो फिर मैं बोला नहीं, आई कैन नॉट वर्क हियर. उसने मेरे को दो दिन बोली भी कि यार तुम ज्वाइन करो, तुम यू विल बिकम अ गुड पीडियाट्रिशियन. बट देन आई थॉट कि आई शुड बी इन द मेडिकल ईयर. फिर भी क्या था, हम लोग को कोई गाइडेंस नहीं था कि बाहर भी कुछ होता है, ये होता है. राइट. वी वर जस्ट. तो वहाँ ज्वाइन किया मेडिसिन वॉज, यू नो, एज यूजल वेरी. आई वर्कड अंडर वेरियस प्रोफेसर्स. आई गेट अ गुड एक्सपीरियंस, various wards as a registrar. Then I was a registrar in the ICU. ICU was just 4-bedded. क्या बात है. बस और उसके साथ एक वार्ड अटैच था, फीमेल वार्ड. अब 4-bedded में you can imagine you cannot work. So many admission used to come and there is lot of fight, lot of political pressure. किसको अंदर ले और किसको, तो बहुत झगड़े जो झंझट होते थे. वो हमारा सर भी बोलते थे, यार तू बहुत झगड़. बोले यार तुम काम करके देखो. वी आर मोस्टली अवेलेबल 24 hours and this is the only ICU perhaps to my knowledge where there is a 24 hour duty. You have to sleep there, everything you have to do it there itself. तो आप लोग की स्लीपिंग अरेंजमेंट क्या थी वहाँ पे? वार्ड में साइड में रूम था. ओके. एक मेरे लिए और एक मेरे हाउस ऑफिसर के लिए. आई वाज रजिस्ट्रार देयर. और वहाँ झगड़े इतने होते थे क्योंकि बगल में मोमिनपुरा, इधर बाजोरिया, एंड एवरीबडी वांट्स, और 4 बेड में कितना अकोमोडेट करेंगे, एंड लॉट ऑफ स्पेस, यू नो, द रिसोर्स लिमिटिंग सेटअप था, भयानक जिसको बोलते हैं ना. तो वी वेर जस्ट, बट वी बिकम वेरी, यू नो, टफ, रफ एंड टफ हो गए थे काम कर करके. आग से सिक्के निकले बेसिकली. तो इट वाज एंड वी यूज्ड टू एंजॉय आवर वर्क. बट ये था कि
ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत रहते थे वहाँ, झगड़े झंझट ये वो बहुत सारे हुए. वी वर टोल्ड यार तू झगड़ता, मैं बोला वी आर आई एम मोस्ट अवेलेबल. दैट्स वाई नीचे के वार्ड में भी कुछ प्रॉब्लम होता तो वी आर कॉल्ड. तो ऐसा कर करके तो देयर आफ्टर आई जस्ट वहाँ से निकल गए. अब देयर वर प्रेसिंग इश्यूज ऑल्सो, वी हैव टू अर्न फॉर द फैमिली. तो पहले आई ज्वाइन IGMC में, मेरे को लेक्चररशिप मिल गया तो आई कंटिन्यूड फॉर 1 year. तब सर कितना सैलरी हुआ करता था? 6,000. अच्छा, ओके, बाप रे. 6,000 दैट टू बिकॉज दे डोंट गिव यूज्ड टू गिव परमानेंट था, ये MPSC नहीं था वो. इट वाज जस्ट 29 days वो. तो DSB बोलते थे उसको. तो वहाँ से फिर कोई दूसरा आदमी आया तो आई वाज रिमूव्ड. आई जॉइन सेवाग्राम. सेवाग्राम वाज अ वेरी एन्जॉयबल एक्सपीरियंस. देयर वाज गुड टीचर्स, डॉक्टर कलंत्री, डॉक्टर AP जैन, यानी इट्स ऑल लर्निंग तो मैंने बीच में ट्राई भी किया DM कार्ड, DM एंडो, कोई भी, बट देन मन नहीं लगा. मन के अलावा फिर दैट टाइम इट वाज डिफिकल्ट एग्जाम्स ऑल्सो एंड वी हैव नो एक्सपीरियंस कि पहले जाके वहाँ पे रेसिडेंसी करना चाहिए. एंड देयर वाज नो टाइम, यू हैव टू अर्न द ब्रेड फॉर द फैमिली. तो फिर प्रैक्टिस में आ गए. तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड सम money to start. I joined Prabhat Hospital, Kamti, because one of my senior colleague Praveen Nitnaur, he told me यार संजय तू यहाँ ज्वाइन कर ली, immediate start हो जाएगा. तो मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया. then I shifted to Kamti. पहले मैं I used to stay in the cantonment bungalow. It was a very good experience. एक लेखवानी करके डॉक्टर था, वो बोले तुम यहीं रहो. उसका ही खाना वाना सब उसका ही उसके जो यूटेंसिल्स आई यूज टू यूटिलाइज. माई मदर एंड सिस्टर दे शिफ्टेड देयर. और वहाँ पे अच्छा चलने लगा कामठी में, बिकॉज हॉस्पिटल वाज ऑलरेडी सेट प्रभात. बट आई यूज टू कम एवरी इवनिंग टू सदर. तो धीरे धीरे वहाँ पे अच्छा प्रैक्टिस हो गया. इट वॉज अ वेरी रोरिंग प्रैक्टिस देयर कामठी में. राइट. तो फिर ही ऑफर्ड मी ऑल्सो, प्रमोद अग्रवाल, नाउ ही इज नो मोर, कि तुम रुक जाओ यहाँ पे. बट बाय द टाइम क्या मेरा यहाँ का प्रैक्टिस पिकअप कर लिया था. एंड कामठी वाज वेरी डस्टी एंड तो हाँ, रहने लायक जगह नहीं था. राइट. तो फिर पहला जो हॉस्पिटल यहाँ पे था वो था शुभम नर्सिंग होम. अभी स्टिल देयर, अभी भी है. राइट. हैप्पी नर्सिंग होम था पहले. ओके. तो वहाँ पे क्या था, वो 6-7 बेड थे, लेकिन वहाँ पे लिफ्ट नहीं था. तो सीढ़ी से पेशेंट को लाना ले जाना, और साला एवरी क्रिटिकल पेशेंट आई यूज्ड टू कीप, वो बहुत तकलीफ था. लेकिन उस टाइम ऐसे ही ट्रेंड था, यानी बहुत ज़्यादा नर्सिंग होम्स थे भी नहीं. एंड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऐसा वेंटिलेटर, क्रिटिकल केयर. लोगों को लगता था वेंटिलेटर डाला है, आखिरी खत्म है इसका खेल. राइट. तो वहाँ समा हुआ, तो प्रैक्टिस बिल्टअप. उसके बाद प्रकाश हॉस्पिटल में. अच्छा, आप यू वर इन प्रकाश ऑल्सो? क्या बात है. तो प्रकाश हॉस्पिटल चालू हुआ, चलते रहा वो भी. फिर हम बोले यार नीचे का जगह ले लो, ICU बनाते. वो फर्स्ट फ्लोर वाला जो था प्रकाश में, छोटा. राइट. फिर ICU बना, वो चला 6-7 साल. देन आई लेफ्ट कामठी धीरे धीरे करके. तो ही ऑफर्ड मी सो मेनी ऑप्शंस दिया कि बहुत अच्छा है, आ जाओ पार्टनरशिप कर लो. बट देन इट वाज टू लेट. एंड इनिशियली अगर बोला रहता तो शायद मैं कामठी में ही चले जाता था, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ हार्ड प्रेस नीड्स. तो फिर उसके बाद ये हुआ कि ये अच्छा चलने लगा ICU भी, बट इट वाज स्ट्रेसफुल. बट दैट टाइम एज आई सेड कि वी वर ट्रेन लाइक दैट कि वी यूज्ड टू वर्क, यानी 22 घंटा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं. फिर वहाँ पे थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आया, जगह का चढ़ाने का, ये वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, वहाँ लिफ्ट का इशू था आई गेस प्रकाश में, है ना, का इशू था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो. देन सामने में जगह किसी ने बोला, वो एक अबेंडेंट जगह था, एक इंश्योरेंस था उसके ऊपर, पूरा खाली पड़ा था. इनिशियली भी 3 डॉक्टर्स वर डिसाइडेड कि 2,000 करके ले लो, 2,000 स्क्वायर फुट. तो फाइनली क्या हुआ कि वो दोनों सोच में पड़ गए, लेना नहीं लेना. आई डिडंट हैव मच ऑफ मनी, थोड़ा बहुत था. तो वो सामने वाला फिदवी साहब था, बोले यार तुम ले लो, मैं देखता हूँ. द ओल्ड मैन, मैं देखेंगे. वो इज पास ना, जोयर भाई का फादर. राइट. तो वहाँ पे पूरा ही बना दिए फिर. एंड सरप्राइजिंगली इट क्लिक्ड ऑन द day 1.
and I had a full admission day one. But what year did Shanti Mohan start at that place, sir? It was 2020. No, sorry, 2001. Okay, okay. 2001. तो वहाँ से जो अभी आए वी आर इन ऑलमोस्ट 24th ईयर, Right. तो वो स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर का भी जगह ले लिए, तो इट वाज चलते रहा फिर, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐड कर लिए. दैट टाइम देयर वर नो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इन सदर्स, नहीं था ही नहीं था, नहीं था, ये भी नहीं था, अपना मैक्स हॉस्पिटल भी नहीं था और किंग्सवे भी नहीं था. तो बट द लॉट ऑफ वर्क हैज टेकन द टॉल ऑफ हेल्थ ऑल्सो. I became severely anemic, had a one cardiac stroke. ये कब था? When did this happen? This happened nearly 2011. Okay. तो but it हो गया बढ़िया. बढ़िया हो गया, ऐसा कोई Right. दिक्कत नहीं आया. I was back to work within 4 days only. Then bit of trouble during COVID. We are exposed to so many COVID patients. I developed COVID, but fortunately that time. The Wokard hospital just opened up because there were a lot of stories with the government setups, and I thought यार वहाँ जाएंगे तो वैसी हालत, क्योंकि यार the corporation वाले घर में रुकने नहीं देंगे. नहीं. तो अब I was detected and it is already on their side के ये, तो मैं यहाँ वोकार्ड में आ गया, स्टेज देयर. मेरे को बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं था, लेकिन वहाँ पे रुक भी नहीं सकते थे. वो फर्स्ट वेव के समय ये सब हुआ. राइट राइट. तो वहाँ पे 6-7 दिन इट वाज एक्चुअली नॉट अ वेरी बैड डेज, बट यू आर ऑल अलोन इन द रूम. कॉरिडोर में भी कोई नहीं रहता था वहाँ. सर 6-7 दिन निकले अच्छे से. फिर नेक्स्ट कोविड वेव वी हैव हैंडल्ड सो मेनी पेशेंट्स, एंड आपका खुद का एक एसओपी प्रोटोकॉल बन गया होगा तब तक. और मोस्ट ऑफ द स्टाफ वर अफ्लिक्टेड ऑन द फर्स्ट कोविड वेव, तो दे वर ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ इम्यूनाइज्ड. तो बढ़िया है. वी यूज टू होल्ड 40 पेशेंट्स एट टाइम्स. फुल लेने जहाँ जगह थी वहाँ पेशेंट्स. दो वी हैड 30 बेडेड, बट नो वे. वो बोले कहाँ जाएंगे हम. उसमें आपको आई थिंक तब परमिशन भी बढ़ा के दिए थे ना कुछ एक्स्ट्रा बेड्स. हाँ, वो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं. पहले तो सबको बोल दिया कि सबको कोविड करना ही पड़ेगा. राइट राइट. नो वे आउट. तो जैसे तैसे समहाउ वी मैनेज्ड, बट इट वाज a हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑल्सो, सम बैड एक्सपीरियंस ऑल्सो. फैमिली वाइप्ड आउट हो गई. बट वी वर्क, हमारा स्टाफ ने भी बहुत अच्छे से काम किया विदाउट गेटिंग कि कोविड हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा. एंड फॉर्चुनेटली नन ऑफ देम डेवलप्ड कोविड सेकेंड वेव में. अच्छा चलते रहा. सो थिंग्स बिकम बेटर एंड बेटर. आई हैड माई ओन हाउस. बगल की भी मैं फिर जगह ले लिया, बिकमिंग गार्डन एंड ऑल. So there were lot of struggle initially, maybe 10 to 15 years. तो बट अगर सर कोई आपसे पूछना चाहे कि जब शांति मोहन हॉस्पिटल 2010 में शुरू हो रहा था, तो दीज आर द की चैलेंजेस यू फेस्ड, 1 2 3 4, वो आपने क्या फेस किए सर? See, initially, actually, to be very frank with you, Shanti Mohan clicked on the day one. See, Okay. initial challenge is always the. नहीं, कंप्लाइंसेस होते हैं और ये सब चीज़ें. वो उस टाइम इतना डिफिकल्ट नहीं था. बाद में दे मेड इट वेरी डिफिकल्ट. फायर लाओ, ये लाओ, सभी हमने किए. फिर वो बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट वगैरह आजकल बहुत तकलीफ हो रहा है. अभी बहुत तकलीफ. अब वो उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, बट माई ब्रदर यूज टू मैनेज एवरीथिंग. अजय, ही यूज टू मैनेज एवरीथिंग पूरा. वी कुड मैनेज इनिशियली फाइनेंसेस ऑल्सो, बट आई मस्ट अप्रिशिएट द लैंडलॉर्ड वॉज वेरी कोऑपरेटिव. जोहर भाई का फादर, उसने कभी कोई तकलीफ नहीं दिया. ऑफकोर्स वी नेवर, हमने मौका भी नहीं दिया उसको, लेकिन ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव. एंड यू विल नॉट बिलीव, व्हेन वी साइन द डील, 52 रुपये में हमने डील साइन कर ली. ये बोले बाद में देना वाला. तो ऐसा इनिशियल कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं गया. अब यू विल नॉट बिलीव कि मेरे साथ जो स्टाफ था 25 साल से वही स्टाफ है आज भी. हाँ आई नो. मतलब मैं तो एसोसिएटेड था ना फॉर अ फ्यू इयर्स, मैं देखा हूँ. तो यानी भी कभी हमने किसी का पेमेंट भी डिले नहीं किया, कुछ भी नहीं. ऐसा तो स्टाफ वाज वेरी. आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि ये रिव्यू जो फीडबैक आपके बारे में आता है फ्रॉम द स्टाफ साइड कि यू ट्रीट देम मोर एज एन एक्सटेंडेड फैमिली ओनली. राइट. कि कभी आप ऐसे कुछ किसी को भी कोई तकलीफ. कुछ बॉस होते हैं ना थोड़े खड़ूस किस्म के होते हैं, आपसे ऐसा कभी भी फीडबैक नहीं मिला है सर. 25 साल से स्टाफ रहा हमारा. तो मूविंग फर्दर सर, यहाँ पे
पिछले सर आए थे बीच में एंड वी एक्सटेंसिवली टॉक्ड अबाउट डायबिटीज Diabetes, right. एंड देन अभी बीच में भी है डॉक्टर उत्कर्ष अरिहंत हॉस्पिटल से Yes, yes. क्रिटिकल केयर के बारे में बहुत देखा. आपका ओवर द पास्ट 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, लेट्स टॉक अबाउट डायबिटीज मोर. क्या रहा है कि आजकल क्या हो क्या रहा है आजकल? तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है सब. नहीं, एक बात तो देखो, व्हेन वी वर इन पोस्ट ग्रेजुएट टाइम, डायबिटीज वाज नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस. देयर वाज नॉट मच इंसिडेंस आल्सो. एंड हम लोग के टाइम क्या था कि मैं जब रजिस्ट्रार था तो किसी पेशेंट ने ब्लड शुगर, ये जो अपना ग्लूकोमीटर डोनेट किया था, एंड इट वाज दैट प्रेशियस दैट टाइम. एक आया था, फिर वो चोरी हो गया. तो हम लोग जो शुगर करते थे वो 2 घंटे बाद रिपोर्ट आता था, वो भी जाके उसका माथा पच्ची करो, बहुत यार रिपोर्ट दे. तो दैट टाइम द प्रिविलेंस वाज आल्सो नॉट वेरी हाई. बट अभी इतना प्रिविलेंस बढ़ गया कि एवरी 5th person इज डायबिटिक. इफ यू डायबिटिक और प्री डायबिटिक, और यू सी, और मे बी आई स्ट्रांगली फील दिस इज मे बी बिकॉज ऑफ द contamination in the food. Maybe the प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा हो रहा है. processed food, maybe the fertilizer is, and something is contaminating. Such a rise, even the people are exercising, but the diabetes going disproportionately and coming 10 years earlier than the Western counterpart. Our heart disease, they come 10 years earlier than the Western counterpart, and hardly 20% people are able to achieve 7% of the HbA1c. तो मैं उस टाइम था, ज़्यादा ड्रग्स भी नहीं थे. हम लोग डायबिटिक ओपीडी चलाते थे, एक बस वो डाउनहिल था और एक मेटफॉर्मिन, बाकी कुछ नहीं. कुछ भी नहीं था. इंसुलिन बांटते थे हम लोग, बराबर. बट दैट टाइम इट वाज अ वेरी द प्रिमिटिव इंसुलिन, पॉर्क इंसुलिन, बीफ इंसुलिन, यानी वो हिसाब से अपन पेशेंट्स को देते थे. और काफ़ी इतना कॉम्प्लिकेशन भी नहीं देखा मैंने जो अभी देख रहा हूँ मैं. डायबिटिक फूड, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ब्लाइंडनेस, हार्ट डिसीज, यानी कीटोएसिडोसिस वी यूज्ड टू सी बट नॉट मच. अभी मालूम नहीं, सडनली देर इज लास्ट 10-15 years में इतना राइज हुआ डायबिटिक कि इट इज़ ऑलमोस्ट टेकिंग ए इन एपिडेमिक फॉर्म. मतलब सर, स्पीकिंग ऑफ रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आप किसी सीनियर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से बात करेंगे, वो बोले यार 15 साल पहले तक भी इतना नहीं देखा था मैंने कभी, जितना आज देखने को मिल रहा है. एंड इट इज़ बेसिकली विजन थ्रेटनिंग लेवल्स पे आ जाता है वो. एंड सम पीपल तो हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर साइट. Actually, क्या it is the microvascular complications is directly proportional to your control of sugar. Unlike macrovascular do have, but the microvascular जो diabetic retinopathy है, if we are doing lot of continuous glucose monitoring test, CGMS. अगर CGMS में we want to keep the around 70% should be time in range, TIR. अगर इसका 10% भी drop होता है to 60, then this incidence of diabetic retinopathy goes by more than 60%. So such as the importance of control as far as the microvascular complications is concerned. But lot of good drugs are available now, but still the incidence is not going down till date. तो आपका अभी ये जो नए आए GLP-1, ये राइबेल्सस आया है, ओजेम्पिक का इधर वर्जन, इसके बारे में क्या सर? See, they are very good drugs. Particularly, I must say the SGLT2 inhibitor. It was a great innovation, and it is a great relief to the diabetic patient because of its pleomorphic benefits. And apart from that, the GLP-1 has come. Initially, it was injectable liraglutide, and now the oral semaglutide has come. It has changed the whole picture of diabetes. But cost is a big issue in this country. But I think eventually हो ही जाएगा. Yes. जैसा SGLT2 inhibitor के बाद में generic brand आया, बहुत it all should receive SGLT2 inhibitor unless there is a contraindication. So it's a good renoprotective, cardioprotective, hepatoprotective. There are 3 major organs which are affected by the diabetes. So even the GLP-1, although GLP-1 is going in a big way, but क्या है कि इंडिया में mostly it is consumed by the elite peoples for anti-obesity. हाँ, वो हो रहा है, काफ़ी हो रहा है. They have consumed the market. You will find shortage in spite of the cost, 300 rupees a tablet. और ये जो आ जाएगा injectable, then it will become a the drug of the century. I believe. Drug of the year award वगैरह. Right. तो सर, I mean अभी तो आप you have been
प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीपल सोसाइटीज़, आपने काफ़ी ट्रैवल किया है, मल्टीपल सिटीज़ में टॉक दिया है. नागपुर फॉर ऑलवेज हैज़ बीन अ टियर 2 सिटी. अभी थोड़ा 1.5 पे जा रहे हैं, बट इन अ हेल्थ केयर एक्सेस इन अ टियर 2 सिटी आपने देखा है कि पहले नहीं था और अभी बहुत अच्छा खासा आ रहा है. एंड वेयर डू यू थिंक इट इज़ गोइंग सर? No, see, I visited recently Hyderabad. We are far behind them. They're actually शुरू में जो स्टार्ट हुआ था नागपुर में, it was not a great start. So वो जो लैग गया है वो अभी तक चल रहा है. अच्छा. वो यहाँ पे क्या इतना बाहर का ड्रेनेज भी नहीं, जैसा टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं कर पाए इतना फास्ट, परहैप्स बिकॉज ऑफ दी लोग यूनाइट नहीं पे. हाँ, You know, then the resource limitation आ जाता है. साउथ में जाते तो यूसी ग्रुप प्रैक्टिस का ज़्यादा है. And lot of people have invested in the medical. Here वो माहौल नहीं रहा. कंपटीशन ज़्यादा हो गया. कंपटीशन, और वो क्या छोटे छोटे नर्सिंग होम बनाते रहे और अपने में खुश रहे, वो दे आर सेटिस्फाइड पीपल, तो उससे आगे बात बढ़ी नहीं. अभी यू सी द हैदराबाद एंड साउथ साइड पर्टिकुलरली, दे आर फार वे अहेड. और अपन यहाँ तक बढ़ते वो किलोमीटर आगे चले जाते हैं. राइट. सो वो जो है वो आई थिंक इट विल टेक मोर देन 10 years. नाउ द थिंग्स आर बिकमिंग बेटर, बट आई विल से स्टिल फार बिहाइंड. राइट. और क्या होता है यहाँ पे, ऐसा लोगों को लगता है कि पीपल डोंट पे हियर, तो दे डोंट वांट टू ब्रिंग द बिग स्ट्रक्चर्स. नहीं, पर नागपुर ऐसा गुड पेइंग कैपेसिटी. हाँ, बट वो ऐसा शुरू में था कि यार यहाँ पे इतना, जैसा आज हैदराबाद है, ये बॉम्बे है, बॉम्बे में ये दे गो यूज टू पे, बट नाउ आई थिंक with the good hospitals coming up, the flow from Nagpur, the patient from Nagpur are going less and less to the metro, like big metro. So we are catching up slowly. Yes, we are catching up. We are catching up. Good है. But I still feel कि long way go. Long way to go. Yeah. इसी की बात करते हैं कि why आपने, how did you manage to be president of so many societies, and एक डॉक्टर के पर्सनल ग्रोथ के करियर में व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू होल्ड सच की पोजीशंस? क्या एक्सपोजर मिलता है? मेरे को जब मैं इनिशियली सबसे पहले कार्डियोलॉजी सोसाइटी ज्वाइन करना, डॉक्टर एसपी नायडू, ही इज नो मोर. देखो क्या रहता है कि वी कीप ऑन अटेंडिंग द, तो वो वहाँ पे ही दे सिलेक्ट किया, तो यू हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट इज़ अवर rather medico-social responsibility कि we have to take up, we have to make the patient, our professional friends, our colleagues aware of the latest development. And it was you know, it is not a I never thought कि मैं अब to अपना practice बढ़ाने के लिए करना है, and it was never a case. तो वो के हिसाब से अपना भी डेवलपमेंट होता है. दे यूज टू पिक यू अप कि यार ये करने का है. सेक्रेटरी हैज़ टू बी जूनियर पर्सन, तो सेक्रेटरी बना तो यू आर एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट. एक समय ऐसा था कि कोई प्रेसिडेंट बनने को तैयार नहीं था फॉर मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज, बिकॉज यू नो यू टू गैदर लॉट ऑफ, बहुत समय लगता है, समय अपना खराब करना पड़ता है. जैसा मैं आज एकेडमी का प्रेसिडेंट हूँ, आई हैव नॉट विजिटेड एनी प्लेस अब्रॉड इन दिस ईयर. I have to miss so many because you cannot move. Because ये काम करना है, right? कुछ ना कुछ रहता ही है. फिर then you have to gather, you know, lot of resources from the companies. तो काम तो तकलीफ वाला है, लेकिन it is enjoyable. You learn also. You make the other people also learn. And you meet new people. I think that is a good experience networking के लिए. और मैं बताता हूँ कि नागपुर का एकेडमिक माहौल much better than even Bombay. Okay, why? हाँ, इतना ज़्यादा CMEs कहीं नहीं होता. क्या बात है? हफ्ते में 4 CMEs और ऑल संडेज आर एंगेज. हाँ, वो तो है. हाँ. इतना CMEs मैंने कहीं दूसरी जगह बोलते यार होता ही नहीं इतना यहाँ पे जितना होता. इवन यू कम टू नो थ्रू द कंपनीज ऑल्सो. राइट. ये बोले बहुत CMEs होते हैं यहाँ. एंड आई गेस सर एक CME और इन सब सोसाइटीज़ का ये है, एक यंग डॉक्टर्स को आपको मेंटोर करने के लिए भी अच्छा ये हो जाता है कि जैसे लॉट ऑफ यंग डॉक्टर्स आर जैसे पेपर वगैरह प्रेजेंट करने जाते हैं, तो थोड़ा सा स्टेज फ्राइट होता है, फोबिया होता है. ये उसने CME बोल दिया, फिर आप लोग थोड़ा सा उसको ट्यूनिंग कर सकते हैं. और क्या होता है यहाँ पे पीपल वांट टू प्रेजेंट, दे गेट एक्सपोजर आल्सो. तो कभी कभी आई गेस द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कुछ नई नई टेक्नोलॉजी आई है, एंड कुछ किसी डॉक्टर वो इतना बिजी है उसके पास टाइम ही नहीं है ये करने का. he'll just go to a CME, attend that session for half an hour, 1 hour, update हो गए, and then उसी को incorporate कर लिए. Definitely helpful in practice. I'll tell you just recent example. We have done a eco workshop in academy. Sen Gupta, Dr. Sen Gupta के यहाँ,
ही इज़ वन ऑफ द पायनियर इन इकोकार्डियोग्राफी इन नागपुर, शांतनु सर, संतानु। राइट। तो यार हम लोग बोले कि यार 30-40 लोग आएंगे, वी हैड 70 एंट्रीज, और हमने रोकना पड़ा क्योंकि जगह नहीं थी इतनी। तो पीपल फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस, नॉट विलेजेस, स्मॉल प्लेसेस, दे ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न इको नाउ। मशीन ला लिए, बिकॉज यू नो एक छोटा छोटा काम रहता, IVC मेजर कर लिए, इको फंक्शन देख लिया, हाउ मच फ्लूइड यू कैन वांट टू गिव, क्या प्रोग्नोसिस है, क्या है। तो अल्ट्रासाउंड ऑफ द लंग, पल्मोनरी एडिमा में कि ARDS में क्या, तो एवरीबडी वांट्स टू लर्न। इतना फुल हो गया वो। तो अभी थिंग्स आर डेफिनेटली चेंजिंग। स्मॉल प्लेसेस पे इको मशीन्स आ गए अभी। तो इट इज़ डेफिनेटली एवरीबडी हैज़ टू डू दिस काइंड ऑफ वेदर ये टू सम कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, आवर ओन सोसाइटी, डॉक्टर सोसाइटी, कि आपको सबको सिखाने का खुद भी सीख रहे हैं ना साथ में। तो इट्स ऑलवेज ऑफ कोर्स यू हैव टू डिवोट टाइम, यू हैव टू ब्रिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेस टू कंडक्ट द CMEs एंड ऑल। उसमें एक ही चीज़ है, अगर पूरे डॉक्टर द होल मेंबर्स दे गेट यूनाइटेड, देन थिंग्स बिकम इजी। यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट करेगा, सेक्रेटरी करेगा, दैट्स ऑल। दैट इज द बिग वो होता है, ये प्रॉब्लम है। वेड्यू थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ के लिए सर सोसाइटीज़ एक कम्युनिटी आउटरीच करती हैं कि पेपर में आर्टिकल दे दिया, कहीं टॉक हो गया, रेडियो पे टॉक हो गया। दैट इज़ ऑल्सो आई गेस सोसाइटीज़ वो हेल्प करती है। एवरी सोसाइटी की हम लोग जैसा प्रोग्राम करते, देन वी होल्ड ए पब्लिक फोरम। तो समटाइम्स बहुत अच्छा अटेंडेंस भी रहता है उसमें। तो वो एक पब्लिक अवेयरनेस इज अ मस्ट। आजकल सर क्लिनिकल, हाँ मैं भूल गया, क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में सर व्हाट डू यू थिंक हैपनिंग न्यूअर, आजकल क्या क्या हो रहा है? सो देख, क्लिनिकल ट्रायल्स आर इन आवर कंट्री, इट नीड्स लॉट ऑफ मोर पुश। ओके। एक तो क्या है, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, द इन्वेस्टिगेटर गेट लॉट ऑफ मनी, बट ही डजंट पास ऑल द बेनिफिट्स टू द पेशेंट, राइट। वो पेशेंट को बस थोड़ा बहुत जो कर लिया उसको लगता है यार हो गया अपना। बट इफ यू सी इन द फॉरेन कंट्रीज, हाफ ऑफ द मनी हैज टू बी गिवन टू द पेशेंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे वैसा नहीं करते। हाँ। तो लेकिन ठीक है, जो पेशेंट को मिल जाता, बट आई स्टिल से इट इज नॉट इन ए वेरी दे हैव टू गो इन ए बिग वे। इंडिया में सबसे बड़ी जो समस्या है, द लॉट ऑफ पेशेंट्स बट नो डेटा। हाँ, काम बहुत है। काम वो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, 50 पे 60 100 पेशेंट देख रहे हो OPD में, डेटा किसी के पास नहीं है। और अपन सब एक दूसरे को बोल रहे हैं देयर इज नो डेटा। अरे यू हैव टू जनरेट डेटा। मेडिकल कॉलेजेस में डेटा नहीं है, सब काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग गुड वर्क, बट डेटा नहीं है। तो बाहर का डेटा पे अपन यू कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट एवरी, राइट। मतलब आजकल मोस्टली डायबिटीज गाइडलाइन जो होती है बाहर से आती है, जबकि इंडिया की खुद गाइडलाइन होनी चाहिए। गाइडलाइंस बना रहे RSSDI वाले, बट वो उसका ही थोड़ा सा आगे पीछे करके कर लेते, राइट। बट सब लोग यही बोलते हैं यार कोई डेटा नहीं आ रहा, तो somebody has to generate ना। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं है, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बायस्ड है, एंड पीपल आर, बाहर के लोगों को लगता है इनके पूरे डेटा बायस्ड है, कंपनी के प्रेशर में है। वो तो हमेशा बोला ही जाता है सर कि बिग फार्मा कंपनीज थोड़ा सा डेटा बायस करवाई देती है। लेकिन यहाँ पे यही इशू है कि द पेशेंट शुड बी पेड वेल, जो इन्वेस्टिगेटर है, तो वो इट्स नो मैटर ऑफ आवर ओन कंसाइंस। आजकल सर हमारे ऑप्शन सर्कल में टेली कंसल्टेशन के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सी दिस हैज स्टार्टेड इन अ वेरी बिग वे ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। बाहर के पेशेंट्स, तो वो क्या ट्रेंड चला अच्छा बीच में, बट देन सब्सिक्वेंटली इट इज़ बिकॉज वी आर नॉट वेरी श्योर कि अपन जो बोल रहे हैं इसको और वो कर रहा नहीं कर रहा। यू कैन सी द फिजिकली द पेशेंट्स, इडीमा दिख रहा, सोलन फेस दिख रहा, बट investigations and other things, so I think it's a bit risky, but we are after COVID ये ट्रेंड बहुत चला, और अभी भी गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कि एटलीस्ट देख उनको गाइड तो करो कम से कम कि क्या होने वाला है। एम जैसा ही कैन टेक आउट द ECG नाउ। इनिशियली क्या हुआ था, जब हम लोग शुरू में हमने मशीन ले लिए थे ऑनलाइन वाली, बाद में व्हाट्सएप आ गया तो वो मशीन डिफंक्ट हो गई। जैसा मैं रामटेक गया, मैंने बोला यार चेस्ट पे ने कम से कम तू ECG निकाल अपने इससे और मेरे को ऑनलाइन भेज तू, तो एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कि इन्फार्क्ट का पेशेंट है, राइट। बर्निंग करके आ रहा, मॉर्निंग में इज डेड,
और ही हैज डेवलप्ड सीवियर MI एंड पुअर LV फंक्शन। तो अभी तो व्हाट्सएप आ गया तो इट हैज़ बिकम वेरी इजी, लेकिन क्या है उनको थोड़ा ये बताना पड़ता कि ECG तो भी लो। दे आर सो बिजी इन द, है ना, सबको एक एनाल्जेसिक दे के। सो आई थिंक व्हाट इज नीडेड इज मोर ऑफ एजुकेशन। Even MBBS doctor, they are so busy in the. I used to go to the rural places. एक कंपनी था ग्लैक्सो, वो मेरे को ले आता था स्नेक बाइट, ये बाइट, वो बाइट, सब ये सबका बताने को वहाँ पे कि लोग दे शुड नॉट मिसमैनेज। थोड़ा हार्ट फेलियर बता दिए, थोड़ा सा डायबिटीज़ बता दिए। तो मैंने देखा MBBS दे आर परफॉर्मिंग much less than the BMS BHMS because this BMS BHMS are trained by us. बराबर। They are knowing more. वो आपके हॉस्पिटल्स में RMOs वगैरह का वो सब वही रहते। और दूसरी बात, दे आर मोर कीन ऑन लर्निंग। ये लोग को ऐसा लगता हम सब आता एंटाइटल्ड थोड़ा सा हो जाता है, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता। एंड दे यूज्ड टू मिस अ लॉट। अनफॉर्चुनेटली द पुअर पर्सन सफर्स। तो वो एक है, मेरे को लगता है एजुकेशन। मैंने बहुत बार लेक्चर दिया गांव में, छोटे छोटे गांव में जाके। आई यूज्ड टू कॉल एवरीबडी, वो कंपनी वाला अरेंज करता था। तो बट मैंने वहाँ एक दो गांव में देखा, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। वो MBBS लोग बोले सर वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन ड्रिंक्स एंड चिकन। आप सिखाओ मत कुछ भी क्या। अब BMS BHMS वाले दे वांट टू लर्न, दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर नॉलेज। मैंने देखा है वो है। अरे वो सब लाइन वाइन सब डाल देते हो, राइट, लाइन, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, अरे सब कर डालते वो। वेरी ट्रू। और ये लोग क्या पढ़ाई करते रहते। हाँ, PG की पढ़ाई कर रहे हैं, PG के बाद DM मैंने सुपर स्पेशलिटी। अरे व्हेन यू लर्न यू हैव टू लर्न ऑन द बेड की साइड, स्किल्स जो है बेड साइड। बेड साइड। ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स हो गए अभी सर शांति मोहन को। सम की चैलेंजेस अलोंग द वेज आपने क्या फेस किए इसके बारे में? सी फ्रैंकली स्पीकिंग, बन गया, बहुत अच्छा चला, डे 1 से फुल हुआ, पर कुछ रोड ब्लॉक्स आते ही हैं। ऑफ कोर्स नाउ द कंपटीशन हैज डेफिनेटली क्रॉपिंग अप। और दूसरी जो इश्यूज है ना, कॉर्पोरेट कल्चर से बड़ा आता है। कॉर्पोरेट कल्चर से फर्क पड़ा। दूसरी बात है इंश्योरेंस से फर्क पड़ा। वी डोंट वांट टू गो इनटू द मच ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि क्या होता है बहुत बार दे डोंट पे, दे टेल अस आफ्टर द पेशेंट इज डिस्चार्ज द पेशेंट नेवर कम्स। तो वो एक बहुत फ़र्क पड़ा कि इंश्योरेंस हटाना पड़ा बहुत सारा। दैट हैज़ इम्पैक्टेड द हॉस्पिटल ओवरऑल प्रैक्टिस, बिकॉज आज मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट्स है वहाँ पे सब इंश्योरेंस का ही, एंड दे हैव गॉट कनेक्शन विद द कंपनी। हाँ, हम लोग को नहीं बोलेगा वो, इनको वो मतलब वो आपका पेमेंट शायद डिले हो जाएगा, पर वो कॉर्पोरेट वालों का बहुत जल्दी हो जाएगा। वो आई नो होता है, वो उनका एक टीम ही है जो ये सब देखता रहता है। और दे आर हैविंग ए सेपरेट टीम विच वी कैन नॉट अफोर्ड। 5-6 लोग का टीम है जो पूरा यही काम कर रहा है, पैसे निकालने से लेके इंश्योरेंस कैसा फिलअप करना एंड ऑल। एंड दे वांट इंश्योर्ड पेशेंट्स, दे डोंट वांट द डायरेक्ट पेमेंट पेशेंट्स। वी आर सर्वाइविंग ऑन दिस डायरेक्ट सेल्फ पे वाले लोग जो है। राइट। तो पीपल वांट कैशलेस नाउ। तो फर्क तो पड़ा डेफिनेटली, यानी जो शुरू में था या बीच में जो माहौल था वो डेफिनेटली इट हैज गॉन डाउन। बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड सर, कि इवेंचुअली क्या हर डॉक्टर को इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और इज देयर अनदर वे इसको बैटल आउट करने के लिए? आपको कैशलेस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पीपल डजंट वांट टू पे। कैशलेस में उनका एक्स्ट्रा पैसा भी लग जाता। जैसा अभी आपका 5 lakhs का है तो एक ही बार में वो लोग कई बार 5 lakhs खत्म हो जाते हैं, बट उनको लगता अभी तो नहीं लगा, बाद में देखेंगे। तो वो मेरे को ऐसा लगता है इंश्योरेंस इज द वे फॉरवर्ड फॉर स्मॉलर सेटअप्स, अदरवाइज दे आर गोइंग टू डाई। आजकल जो नए डॉक्टर्स हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं उनके लिए कुछ की कंसर्न एरियाज आप बता दीजिए भैया, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, देन यू विल प्रॉब्ली नॉट हैव इनफ रोड ब्लॉक्स। सी वन थिंग इज वेरी क्लियर, यू कैन नॉट हैव ए smaller things. जैसे you cannot run without ventilator, you cannot run without oxygen unit, or all sorts of emergency has to be there. अभी वो बोलेगा नहीं मेरा I will stop here, it is not possible. So you will not believe COVID में टाइम पे we have purchased almost 10 ventilators. शांति मोहन में उसमें यानी 5-6 मेजर है वेंटिलेटर, उसमें से 2-3 चलते, क्योंकि अपने इतना कोविड टाइम पे, लेकिन देयर वाज नो वे आउट। एवरी पेशेंट वाज हैविंग हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन का इतना डिमांड था। तो
ऐसा छोटा मोटा करके नहीं चलेंगे. इनफैक्ट देयर वर रिपोर्ट्स आल्सो कि इवन यू हैव टू कीप डिफिब्रिलेटर इन द clinic. Patient dies, then it becomes a case of negligence. That is another field which we have to face now. Every patient is demanding, and things are not as easy as it was. They were back then. Even back. Right. Patient has lot of faith. अभी every patient is demanding. ट्रस्ट इश्यूज डेफिसिट भी बहुत हो गया. बहुत ज़्यादा. Either way, कुछ अपने तरफ से भी है, कुछ पेशेंट्स की तरफ से, but more from the patient side. बहुत से हॉस्पिटल सर हम देख रहे हैं कि फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं. करना भी चाहिए, बट कभी कभी द इंटेंट इज नॉट वेरी गुड. तो इट इज मतलब अंडर कटिंग के लिए वगैरह. तो एक इसको बैलेंस कैसे किया जाए कि पब्लिक को थोड़ा सा फ्री बेनिफिट भी मिले, कम्युनिटी आउटरीच भी हो, और अनड्यू एडवांटेज भी ना उठाया जाए. See, one thing is that what we are doing, most of companies, they are doing free lipid camps, free TSH, liver scan. So we are not charging them. We announce them. वो अपना जो ऑनलाइन या पेशेंट का जो ये ग्रुप बना हुआ है कि आप लाओ, बाकी लोग को भी लाओ. बट व्हाट आई फील, still you have to gather courage and amenities, do some rural. जैसा क्या है, you can pick up few diabetic patients. You may not, you have to have clear intent कि इनको यहाँ नहीं लाना है, but educate them about the diabetes. क्या होता है, diabetic patient और dextrose लगा देता वहाँ का डॉक्टर. तो you have to educate both the party. You have to educate about the chest pain. यार burning हो रहा, तो at least take a ECG. तो वहाँ एक ECG मशीन है, everybody is affording now. You can send to us. We will give the consultation on the ECG कि भैया इसको अभी ये लगेगा नहीं लगेगा, वहाँ से निकालना है तो एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, जो भी स्टैटिन देके तो भी भेज. कई बार क्या पेशेंट डाइज ऑन द वे, छिंदवाड़ा से आ रहा है यहाँ तक बीच में. अनदर बैड प्रैक्टिस इज एम्बुलेंस पीपल. दे हैव स्पॉइल्ड द होल सिस्टम. कैसे सर? एम्बुलेंस क्या करते, इफ यू विजिट समटाइम्स सिवनी एंड छिंदवाड़ा, यू विल फाइंड लॉट ऑफ एम्बुलेंस देयर. दे ब्रिंग द पेशेंट्स एंड बीच में कहीं डाइवर्ट करके दे टेक टू द अदर हॉस्पिटल. वहाँ से दे टेक अच्छा मनी. बाप रे. बहुत खराब है. इवन आई विल फाइंड जीएमसी में एम्बुलेंस खड़ी रहती. दे आर वेरी पुअर पेशेंट्स, उनसे भी. सो थिंग्स आर नॉट वेरी हेल्दी. यंग डॉक्टर्स के लिए क्या एडवाइस रहेगा सर? नहीं, you have to update, keep on updating yourself. You have to be honest to the patients. You should not run after the money. First you build up your money, comes automatically, and you don't need much of money to survive. But क्या होता, unfortunately, bigger hospitals, bigger setups, EMI. तो I think मेरे को तो सीधा लगता है कि you should form a group, but unfortunately डॉक्टर लोग का एक दूसरे से जमता है नहीं जमता. अगर आप ग्रुप बना लेंगे जैसा पूना में है, सोलापुर में, तो everything becomes very easy. और one person should remain on call, तो life also become easy. पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो you can give a better service. So young लोग अलग अलग छोटे छोटे डाल रहे हैं, that is not going to serve. 10 years down the line, this corporates will take over. हाँ, मतलब मुझे नहीं पता, आपको शायद, आई एम नॉट श्योर आपको पता है कि नहीं, ऑफ्थेल्मोलॉजी में क्या हो रहा है सर, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस बन गए हैं. बराबर. दे आर एक्वायरिंग छोटे छोटे प्रैक्टिसेस. एक ऐसे 2-3 बड़े बड़े नाम है, एक डॉक्टर अग्रवाल का ग्रुप है, एक सेंटर फॉर साइट है, एक ASG हॉस्पिटल का ग्रुप है. सो दे आर गोइंग टू बॉम्बे. अभी Tier 1 सिटीज़ का चल रहा है. तो किसी सक्सेसफुल डॉक्टर है वहाँ पे, उनकी पूरी प्रैक्टिस उन्होंने अक्वायर कर ली. एक ह्यूज पे आउट दे दिया उनको, 2, 3, 4, 5 CR का. एंड अभी आप ही उनके ऑन कॉल कंसल्टेंट बन गए. एंड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स ये दे भी दे रहे हैं कि चलो भैया मेरे सिर से ऊपर से एडमिन और ये सब हट गया. आई विल वर्क 10 to 5 अंडर योर बैनर, मेरी जगह है. एंड आई थिंक इधर भी आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा. बट आई थिंक ग्रुप प्रैक्टिस इज द की टू लेस स्ट्रेस, एंड यू कैन गिव मोर बेनिफिट टू द पेशेंट एंड मोर रेस्ट टू योर, लॉट ऑफ पीस टू योर माइंड ऑल्सो. हाँ, मतलब एक ही हॉस्पिटल में अगर 2-3 कंसल्टेंट रहे तो ऑन कॉल आपका टाइम भी कम हो जाएगा. राइट. और क्या क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस विल गो अप. राइट.
हर एक डॉक्टर को ऐसे 8-8 घंटा काम करने की कोई जरूरत नहीं, 10-12 घंटे, राइट. जैसे आप इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करते, शायद जा भी पाओगे उस चक्कर में. राइट. एनीथिंग एल्स सर आप यू वांट टू टॉक अबाउट? नहीं, I just wanted to say कि you know the honesty must prevail in our profession, because you know patient sees you with a different angle now. Every time you say he will take one or two or three opinion कि यार इसने सही बोला क्या. तो honesty, and you have to keep on updating. Whatever fees you charge, that is immaterial, but you should be very updated person and you keep on learning. यहाँ क्या है, एक बार सीख लिया चला रहे, वैसा नहीं. It doesn't work. And you have to keep on adding the instrumentation. Recently I have purchased a echo. I am not a full-time echocardiographer. It's 70 lakhs. A lot of people told me यार क्या को करने का भी, लेकिन क्या है कि you have to inculcate the futuristic. बेटर मशीन आएगी तो आपका ट्रीटमेंट मोडालिटी उतना इंप्रूव होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा. You pick up the ischemic heart early. बराबर. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपडेट योर सेल्फ रेगुलरली. यू मस्ट अटेंड CMEs कॉन्फ्रेंस में क्या घूमने का काम नहीं, फिर यू मस्ट अटेंड प्रॉपरली एंड यू नो वेयर यू आर लैकिंग. यू मस्ट, नोबडी इज परफेक्ट. नोबडी इज परफेक्ट. मेरे फादर का एक बड़ा हमेशा कहते हैं, आप जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े रहने के लिए भी भागना पड़ता है. बराबर. नहीं तो आप इस रेस से बहुत जल्दी बाहर हो जाओगे. रेस से भी बाहर हो जाएंगे. और दूसरा क्या है कि अपना आपको खुद को ही लगेगा यार अपन थोड़ा और करना चाहिए था. और करना चाहिए था. दिस आई ऑलवेज फील कि मेरे को ऐसा लगता था फर्स्ट एमबी में जाके फिर से यार एनाटॉमी अच्छे से करो, और बट देयर इज नो एंड टू द अपना जो यू आर ऑलवेज यू हैव टू लर्न, कीप ऑन लर्निंग. बट ये कि ऑनेस्टी आई थिंक इज द की. पेशेंट शुड फील यार ये जो बोल दिया, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी, ट्रांसपेरेंसी रखो. एंड इफ यू फील कि यार ओपिनियन लेना है तो लो. डोंट हैव द ईगो शुड नॉट कम इन बिटवीन. बिल्कुल. हो सकता है यू मे बी मिसिंग. इन मेडिसिन तो रूल ही है कि आप एक सेकंड ओपिनियन ले लो, क्या उसमें कुछ नहीं है, दूसरा भी ले रहे हैं. तो यू नो इनफैक्ट आई जस्ट बिफोर क्लोजिंग, डॉक्टर सुबेदार, यू नो ही इज नो मोर, ही इज अ वेरी बिग मैन नेम इन मेडिसिन. मैंने उनको एक बार बुलाया. यू नो एवरी फिजिशियन फेसेस 4 to 5 केसेस ऑफ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन एवरी ईयर, एंड दैट टेक्स अवे योर कॉन्फिडेंस. साला वो पेशेंट भी बोलता है यार इसको जम रहा नहीं. तो मैंने सर को बुलाया एक दिन. सर बोले यार तेरे को जितना आता ना उतना मेरे को भी आता. तो बोले तू मेरे को मालूम है यू कॉल्ड फॉर द फैमिली मेम्बर्स. तो अपना लिखे उन्होंने, चले गए. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शुड नॉट क्रिटिसाइज योर कलीग्स. इवन इफ इज रॉन्ग, टेल हिम इन प्राइवेट. वो उससे क्या हो जाता है, सब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं. वो बैड माउथिंग नहीं करना चाहिए. बिफोर आई लेट यू गो, मैं हर डॉक्टर से ये सवाल पूछता हूँ सर कि अगर आप मेडिसिन फील्ड में नहीं होते तो व्हाट अल्टरनेट प्रोफेशन डू यू सी योरसेल्फ बीइंग इन? See, my family, you know, they had a transport company, big transport company in the eastern India. But I always thank the God कि मेरे को वहाँ से इधर आ गया. यहाँ क्या, नहीं तो I would have become a transporter. But क्या है, मेरे को अभी लगता है कि मैं डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं बन सकता. Right. Because I had no skills, you know. मैं कभी मेरे साथ वाले सब शेयर में ये कर रहे वो कर रहे, मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं आया. आई ऑलवेज एंड बरीड माई सेल्फ इन टू दिस प्रोफेशन, एंड इट इज ऑलवेज है ना. एक भी पेशेंट अगर ठीक नहीं चल रहा है तो द स्ट्रेस गोज लाइक एनीथिंग. नाउ लिटिल बिट लेस, बट आई नो इट इज इंटरनली बर्निंग. राइट. यू आर बर्nt आउट मैन नाउ. तो एक वन लास्ट क्वेश्चन. एक डॉक्टर को कब ऐसा लगता है यार अभी हो गया है, मेरे को जो करना था कर लिया, अभी चलो मैं रिटायर हो गया बैठ जाता हूँ घर पे? इसके बारे में भी सोचा है सर? नहीं, मेरे को ऐसा लगता कभी कभी, लेकिन मेरे को लगता कि अगर ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या. देयर इज नो अदर थिंग वी नो, एंड वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग बियॉन्ड दिस. बहुत लोग ने किया, चेंजेस किया, कुछ लोग कुछ बिजनेस में भी है, सब है. किसी ने वन टाइम ही कर दिया, फिर धीरे धीरे स्लो हो गया है. बट आई थिंक टिल you should not hang your boot till you can work. बराबर. क्योंकि क्या है कि फिर करेंगे क्या, और फिर you become other problems crop up. So I think there is no retiring age for us. At least I believe
बिकॉज क्या जैसे लोग 60 में रिटायर हो रहे हैं, अरे सो मच नॉलेज यू गेन ओवर, आई एम नाउ 34 ईयर ऑफ प्रैक्टिस, तो वो नॉलेज तो अभी हाँ अभी तो सोना है वो, अभी तो चालू है। राइट बिकॉज यू नो यू कैन गिव एडवाइस इवन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। बराबर। तो मेरे को ऐसा लगता है दिस इज द राइट टाइम वी शुड यूज, यू शुड ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड वन मस्ट प्रैक्टिस टिल डेथ। क्या अभी आई विल टेल यू द डॉक्टर सुबेदार, I know. practicing till 93. I know. He's actually grandson Gaurav sir was my senior, so I know him personally अच्छे से. तो देखो वो क्या है कि सूर्यवंशी सर है, हाँ. इज प्रैक्टिसिंग लाइक, देखो क्या होता है अभी यू आर होल, यू नीड, यू आर फुल विथ एक्सपीरियंस नॉलेज, तो यू कैन डिलीवर गुड नाउ, इट इज नॉट एट एज टू रिटायर एंड यू शुड नेवर रिटायर, जब तक जमता करो। वो साइकेट्रिस्ट थे ना सर, सलीम मुजावर सर के फादर, हाँ. ही प्रैक्टिस टिल 96 आई गेस, राइट? यस बराबर। बहुत लंबा प्रैक्टिस। हाँ. देखो क्या अभी तो अपन सब सीखे, बट आई ऑलवेज टेल कि यार जब भी बुक्स उठाते तो ऐसा लगता है यार बहुत सीखने का है। एंड वन ऑफ माय वेरी फेवरेट टीचर डॉक्टर बीपी खोबरागड़े, ही इज अ पीडियाट्रिशियन। शंकर सर नहीं, शंकर सर नहीं, ये अच्छा अलग है, शंकर खोबरागड़े इज डिफरेंट। ओके। बीपी खोबरागड़े इज वन ऑफ द डॉयन इन पीडियाट्रिक्स। वो हमेशा बोलता था आई नो ओनली 1% ऑफ हैरिसन। क्या बात है। जबकि इतना पढ़ाई करता था, क्योंकि क्या मेडिसिन इज सच ए साइंस है, जितना तुम पढ़ेंगे हाँ, उतना कुछ लगेगा कुछ नहीं आप आता। हर बार ऐसे कुछ नया डिस्कवर नया करेंगे, है। राइट। और एवरी टाइम द न्यू डिसीज इज क्रॉपिंग अप। साला कोविड आया, फिर पहले HIV आ गया, फिर कोविड आया, अभी और चाइना में कुछ तो फिर से आया अभी। चाइना में फिर तो, और एवरी पेशेंट टीचेस यू अ लॉट। हाँ। वो विलियम ऑस्लर ने बोला था लिसन टू द पेशेंट एंड यू विल गेट ए डायग्नोसिस। तो अभी क्या हो गया कि AI आ रहा, ये आ रहा, AI कैन नॉट रिप्लेस अस। नो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। अरे वी हैव मेड द AI, वो क्या रिप्लेस करेंगे? तो यू हैव टू टच द पेशेंट्स, यू गो इनटू द ये। ऑफ कोर्स द पेशेंट हैज बिकम बिग लिटिगेंट नाउ, लेकिन फिर भी आवर जॉब इज वी हैव टू डू आवर जॉब। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आई एम ऑनर्ड टू फॉर आप यहाँ आए फाइनली, बहुत आपके शेड्यूल से अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। चलो राइट, थैंक यू सो मच Right, sir. for this. I could speak whatever I हाँ